Welcome, dear listeners. A very good morning to all of you. Today, I am going to have a discussion with you about the Unit First of BA CBCS Second Semester Communication English, Jammu University. So, what is in Unit First of Communication English? It has three main parts. Number one, it's about reading skill, and second part, it's about public speaking skill, and third part, it's about oral presentation. So unit first has three main parts. First, talk about reading skill. What are reading skill? How to make reading effectively? A reading skill, it has some important ingredients. First, decoding. Second, comprehension and retention. Third, reading technique. Fourth, reading problems. And final, fifth, closing technique. So, in reading skill, then we have to know about decoding, comprehension and retention, reading technique, reading problem, and close reading. Reading skills tells us how to make reading effective. In order to make reading effective, we have to go through, first of all, decoding. What do you mean by decoding? Decoding means recognition of letters, recognition of words. It is most important, and it is first and most important technique while learning or reading. Next is comprehension and retention. After decoding, there is comprehension and retention. When you are in a position to recognize letters, to recognize word, there is comprehension, understanding of the words, understanding of the sentence, and retention. What are you reading? What are you understanding? That should be retained in your memory, in your mind. And next is reading techniques. What are reading techniques? How we have to read? What are the basics? And how we have to read it? And next is reading problems. What are reading problems? If you have not good vocabulary, if you have no knowledge about the grammar, about the tenses, you are not in a position to make a sentence, to read, to understand. So these are reading problems. And finally is close reading. Close reading means analysis of reading, critical reading. First of all, there is decoding, understandings of letter, understandings of words, understanding of pronunciation, phonetics. Then there is comprehension and retention, how to understand it, how to understand the meaning of the words, how to make sentence, and how to retain it in your mind, in your memory. And then there is reading techniques, understanding of grammar, making of sentences, structure of words. And then there is reading problems. Reading problem means if you have no vocabulary, if you don't know about the grammar, you don't know about the phonetics, that is reading problem. And then close reading is when you are in a position to read, write,
to speak. Then you have ability to critically analyze, to research, and that is close reading. So in communication English, in unit first part is about reading skill. In reading skill, there is also reading techniques. In reading techniques, the reading techniques are skimming, scanning, and trimming. These are techniques where when you are reading only main points, when you are reading a specific topic, or when you are reading a whole chapter, a whole book. These are different techniques. So it's all about the first part of communication English. So next is about public speaking skill. What do you mean by public speaking skill? Public speaking mean speaking in public, have a conversation with two or more than two peoples, in a public meeting, in conference, in debate, in discussion, in demonstration. That is public speaking. So how to make your public speaking effective? And how to make your public speaking effective, you must go through following things. Number one, preparation. Preparation is the first and most important thing in order to make your public speaking effective. When you are going to participate in a public, when you are going to participate in a conference, in a debate, you must prepare yourself. Preparation is most important. The next thing is vocal control. In a public speaking skill, the second most important thing is vocal control. How you pronounce your words. What is your accent? What is your style? What is your intonation? Your tuning? These things are very important in order to make your speak effective. And then next is time management. You are speaking in a public, you have to consider about your time so that you may finish your speech within your time. So don't exceed your time. The next thing is preparation, vocal control, time management, and then handling question. So you have an ability, you should be in a position to handle the question. When you are going to speak in a public, you are participating in a debate, you are in a conference, you are speaking in seminars, in a public meeting. So you should have a good preparation, you have a good vocal control, you should consider about time, and final thing is you should be in a position to handle question. So how you will handle question? If you have a good information, a whole information, a full information about that very topic, about which you are talking, about which you are speaking, so you can handle your question very easily. So you should in a position, you should have a capacity, you should have an ability to handle question. So these things are very important for public speaking skill. The next part is oral presentation. Oral mean orally. Oral presentation. In oral presentation, there is debates, allocation and extempore, demonstration, conversation. What do you mean by debate? Debate means a formal discussion between two people or more than two people on a particular subject and finding solution of the same. Debate means you are discussing on a
particular topic, on a specific topic, and finding solution of the same. And then next is allocation. Allocation mean art of public speaking with an expert control of voice and gesture. Allocation mean art of public speaking with an expert control of voice and gesture. So allocation was initially introduced by Thomas Sheridan, and it was introduced in 18th century. So what are the importance of allocation? What are the basic focusing principle of allocation? These are articulation, that means sharpness of speech, inflection, change of pitch, बात चीज में और अतार चढ़ाव, then accent, लहजा, reading words, that means putting form, voice, how much, audible, listenable, and gesture. These things are very important in allocation. Then next is extempore. Extempore means speaking without preparation, without prior information. You are in a public meeting, you are in a public gathering, you are in a conference, you are in a seminar, you are somewhere, someone has asked you to speak, and you have no knowledge of the same, you have no preparation of the same. That is extempore. So in order to make your extempore speech effective, what are essentials of the same? First of all, when you are going on your dais on a stage, first and most important thing is that you must greet audience, you must introduce yourself, you must tell about the topic, and you must thank the person who have introduced you. Next is you should do your best to get the attention of the audience. Next thing is you must not imitate. Be yourself. And next is don't feel panic. If you did any mistake, you should not feel panic. You should not worry for the same. And next thing is that you should only speak about some few points. Speak about few points. Don't talk. Otherwise your audience will be bored. And next final thing is that you should end your speech with a nice mood, with a good quotes, words, and thanks. It's all about extempore. Next is demonstration. What do you mean by demonstration? Demonstration means talking about a specific, about a particular topic with example. You're going to have a discussion, you're going to narrate a specific topic, you are going to speak about a specific topic, and it is must for you to give example in order to make it effective. So in a demonstration, a particular subject, a particular topic, a particular content is to be discussed with examples in a very good manner in order to make it effective, in order to understand the people, in order to make the lecture so easy that the learners, that the listener, that the audience understand it very easily. That is demonstration. So in oral presentation, there is
debates, allegation and extempo, demonstration, and finally there is conversation. What do you mean by conservation? Conservation is a part of communication. Conservation is of two types: formal conservation and informal conservation. When we speak between two people, we are sharing our views, ideas, emotions, feeling. That is conversation. So in conservation, it is of two types, that is formal and informal. Formal conservation, we speak grammatically. When we are speaking with our higher authorities, when we are speaking in a company, in an organization, information conservation is when we are speaking with our friends, our family members, telephones, emails. These are all informal conservation. So these are important topics that we have to read in oral presentation. तो मैंने कहा कि मैं आज का जो मेरा मौजू है वो है कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के BA CBCS कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स जो हैं, कुछ ब्रीफ डिस्कशन जो है उसके बारे में बातचीत करूं। तो जो पहला यूनिट है कम्युनिकेशन इंग्लिश का, इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में रीडिंग स्किल के बारे में बताया गया है। रीडिंग स्किल्स क्या हैं, कैसे रीडिंग को इफेक्टिव बनाया जाता है। फिर दूसरे पार्ट में बताया गया है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, कैसे पब्लिक में आपने जो अपनी स्पीकिंग है स्किल है उसको कैसे इफेक्टिव बनाना है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज ओरल प्रेजेंटेशन, कि आपने अपना जो ओरल प्रेजेंटेशन जो है उसको कैसे इफेक्टिव बनाना है। तो जो पहले पार्ट है जिसमें रीडिंग स्किल के बारे में बात की गई है, तो रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं वहां पे ये बताया गया है कि रीडिंग स्किल्स क्या है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ एलिमेंट्स की बात की गई है, जैसे डिकोडिंग, comprehension and retention, reading techniques, reading problem and close reading. कोडिंग से शुरुआत होती है। कोडिंग मतलब जब हम स्टार्टिंग में हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हमें उसके लेटर्स के बाद सीखना है, हमें उसका जो वर्ड्स बनाना है, हमें फिर सेंटेंसेस बनाना है, हमें लेटर्स उसके बाद फोनेटिक्स मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। जैसे कि इंग्लिश में हम लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइंटिक, सेमेंटिक। इसी तरह डिकोडिंग लेटर से शुरू होती है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ। तो डिकोडिंग मीन रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स। हमने मतलब ये हमारी रीडिंग की शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है। फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, जब हमें लेटर्स के बारे में पता चल गया, जब हमें वर्ड्स बनाने आ गए, जब हम ग्रामर सीख लिया, सेंटेंस बना लेते हैं, फिर हमें उनको कैसे समझना है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। जब हमने किसी चीज को समझ लिया है तो अपने माइंड में कैसे रिटेन करना है, अपनी मेमोरी में कैसे रिटेन करना है, दैट इज रिटेंशन। हमें कैसे अपनी उस चीजों को कैसे याद रखना है। देन नेक्स्ट इज डिकोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन के बाद है रीडिंग टेक्निक्स। व्हाट आर रीडिंग टेक्निक्स? रीडिंग टेक्निक्स क्या है? जैसे हमने बताया कि स्किमिंग, स्कैनिंग, ट्रिमिंग, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ अगर कोई चैप्टर है, कोई यूनिट है, तो उसके सिर्फ मेन टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कभी क्या होता है कि हम जो यूनिट होगा या जो चैप्टर होगा उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, हम कभी कभी पूरे यूनिट को पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं या पूरी बुक को पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं आप रीडिंग। तो रीडिंग टेक्निक्स के बाद रीडिंग प्रॉब्लम्स। रीडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? रीडिंग प्रॉब्लम किसे कहते हैं? देखो,
अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, आपको वर्ड्स बनाने नहीं आ रहे हैं, आपको ग्रामर नहीं आ रही है, आप सेंटेंसेस नहीं बना रहे हो, तो आपको रीडिंग टेक्निक्स में प्रॉब्लम आएगी, रीडिंग्स प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। तो दीज आर रीडिंग्स प्रॉब्लम। फाइनल है क्लोज रीडिंग किसे कहते हैं। जब आपकी डिकोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग टेक्निक, रीडिंग प्रॉब्लम्स भी दूर होगी, तो क्लोज रीडिंग, फाइनल क्रिटिकल एनालिसिस, रिसर्च, आपने जो है किसी चीज को पढ़ना है और उसकी तह तक जाना है, दैट इज क्लोज रीडिंग। अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये था पहला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में बात की गई है कि हमने पब्लिक में अपनी जो स्पीकिंग है, अपनी स्पीकिंग स्किल जो है, उनको कैसे इफेक्टिव करना है, उसको कैसे इफेक्टिव करना है। तो इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इंपॉर्टेंस, वो ये हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली बात है प्रिपरेशन, नेक्स्ट वोकल कंट्रोल, फिर टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनल हैंडलिंग क्वेश्चन। तो इन ऑर्डर टू मेक यूर पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन। कहीं भी आप पब्लिक में जा रहे हो, कहीं पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, किसी मेन टॉपिक पे, मेन एजेंडे पे, आप कहीं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो है प्रिपरेशन करके जाना है। आपको अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी, कहते हैं कि प्रिपरेशन प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वोकल कंट्रोल। वोकल कंट्रोल मीन कि हम जो है अपने अल्फाज जो हैं, अपने जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारी जो वर्डिंग है, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है। हमारा जो एक्सेंट है, हमारा जो लहजा है, हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो अंदाज है, उसको हमने कैसे बेहतर करना है। हमारी जो ट्यूनिंग है, उसमें हमने कैसे उसमें जो है सुधार लाना है, उसे कैसे इफेक्टिव करना है, एक पोएटिक फॉर्म में कैसे लाना है, रिदम राइम में कैसे लाना है। तो जब हम में जो एलोकेशन जो होगा, प्रिपरेशन, वोकल कंट्रोल जो हमारा होगा, वोकल कंट्रोल हमारा अच्छा होगा, तो जाहिर है कि हमारी जो स्पीक है वो इंप्रेसिव होगी, वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, आप पब्लिक में बोल रहे हो तो आपने टाइम का खास ख्याल रखना है। आपने अपने टाइम को एक्सीड नहीं करना है, अपने टाइम में आपने पूरी बात खत्म करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फाइनल है हैंडलिंग क्वेश्चन। आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हो, जो बात कह रहे हो, आप जो व्यूज शेयर कर रहे हो, आप में ये सलाहियत होनी चाहिए, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसका जवाब दे सको। ये तभी मुमकिन होगा जब आपको उस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपने रिसर्च की होगी, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ की गई हो। तो ये था पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन। मतलब जब हम ओरली कहीं पे बोलते हैं पब्लिक में, तो ये ओरल प्रेजेंटेशन की कुछ मेन एलिमेंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये क्या है? इसमें है डिबेट्स है, पहला एलोकेशन है, नेक्स्ट एक्सटेम्पोर है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन है और फिर कन्वर्सेशन है। डिबेट्स किसे कहते हैं? देखो, कहीं पे हम कुछ फॉर्मल डिस्कशन होती है, किसी मेन टॉपिक पे बातचीत होती है, वहां पर आर्गुमेंट होते हैं और अपोजिंग आर्गुमेंट भी होते हैं, और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है, उस चीज का सोल्यूशन। हमें कोई टॉपिक मिल जाता है, हम उस पर बहस वहस करते हैं, हम अपने अपने व्यूज रखते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि कौन से व्यूज जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो दैट इज डिबेट। नेक्स्ट इज एलोगेशन। एलोगेशन मैंने बताया कि ये आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है विद एन एक्सपर्ट कंट्रोल ऑफ वॉइस एंड गेस्चर। जब आप बोल रहे हो, आप जो वर्ड बोल रहे हो, आपके एक्सेंट में, आपका स्टाइल में, आपकी जो वर्डिंग है, उसमें एक एक्सपर्टाइजनेस होनी चाहिए। उस आप उम्दा तरीके से, आप बेहतर तरीके से, नाइस तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, इम्पैक्टिव तरीके से जो है आप अपनी जो है वर्ड जो है अदा कर रहे हो। दैट इज एलोकेशन। मतलब आपने जो है अपनी बातचीत को कैसे इफेक्टिव बनाना है। इसमें आर्टिकुलेशन, इन्फ्लेक्शन, एक्सेंट, रीडिंग वर्ड्स, वॉइस, गेस्चर, इन पूरी चीजों का इस्तेमाल होता है। हमने बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आप क्या गेस्चर जो है यूज कर रहे हो, तो ये एलोकेशन में आते हैं। तो एक्सटेम्पोर मैंने जब बताया कि
ऐसी स्पीच, ऐसी पब्लिक स्पीच जहां पर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, हमें ये बताया नहीं जाता है कि आपने कहीं बोलना है, उनमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो अचानक हमें जो है स्टेज पे बुलाया जाता है, तो हमने कैसे वहां पर जाकर अपनी स्पीच, एक्सटेम्पोर स्पीच जो है और उसको इफेक्टिव बोलना है, कैसे उसको बेहतर करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको मौका मिला, जब कहीं ऐसा होता है कि आपको बुलाया जाता है स्टेज पे, आपने जाकर स्टेज में सबसे पहले ग्रीटिंग करनी है ऑडियंस को। उसके बाद क्या है कि आपने अपने टॉपिक के बारे में बताना है और उस पर्सन का आपने थैंक्स करना है जिसने आपको मौका दिया वहां बोलने का। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो स्टार्टिंग के जो फ्यू पॉइंट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या अपनी जो है उसको एक्टिव बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आप किसी शेर के साथ, अपने किसी कोट के साथ या किसी शॉकिंग न्यूज या किसी ऐसी चीज से आपने शुरुआत करनी है, ताकि जो ऑडियंस है उनके तवज्जो जो है, अटेंशन है आपकी तरफ बनी रहे। और फिर आपने किसी की नकल नहीं करनी है, आपने ये नहीं कहना कि मुझे तैयारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में, ज्यादा मालूमात नहीं है, वो किसी की नकल नहीं करनी है। और फिर क्या करना है कि आपने जो है मेन पॉइंट्स जो हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वही बोलने हैं, उसी में आपने बात खत्म करनी। ये नहीं है कि आपको मौका मिल गया और आप बोलते जाओ और जो ऑडियंस है आपसे बोर हो जाए। फिर जो फाइनल जो है आपने जो है अपनी स्पीच जो है उसको बड़ी खूबसूरत अंदाज से खत्म करना है, नाइस कोट के साथ, नाइस मूड के साथ, या एक अच्छे खूबसूरत शेर के साथ, या और फिर फाइनल लास्ट पे आपने जो है थैंक्स भी करना है। तो ये होता है एक्सटेम्पोर। फिर डेमोन्स्ट्रेशन हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, एलोबरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। हमने इस तरह से बयान करना है उसको एलोबरेट करना है, ताकि जो हमें लिसन कर रहा है, जो हमें देख रहा है, वो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ जाए। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। एंड देन देयर इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन बातचीत, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो कंजर्वेशन में आती है। हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, तो बातचीत के जरिए करते हैं, तो हम अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट, इमोशंस वगैरह शेयर करते हैं। दैट इज कन्वर्सेशन। अब कंजर्वेशन जो है इसमें दो टाइप की होती है, फार्मल कंजर्वेशन और इनफॉर्मल कंजर्वेशन। फार्मल कंजर्वेशन जो है इसमें हमने बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है। हम अपने से बड़े के साथ, अपने ऑफिसर के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जब हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज फार्मल कंजर्वेशन। तो इनफॉर्मल कंजर्वेशन हम अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली में फ्रेंकली, जब से ईमेल्स हो गया, फोन पे, मोबाइल फोन पे वगैरह जो बातचीत करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कंजर्वेशन। तो ये था ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, BSc BSL सेकंड सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा इसमें 3 पार्ट है। पहले पार्ट में है रीडिंग स्किल, सेकंड पार्ट में है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, एंड फाइनल पार्ट में है ओरल प्रेजेंटेशन। तो रीडिंग स्किल में हमने देखना है कि हमने रीडिंग को ऐसे इफेक्टिव करना है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, डिकोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इनटेंशन, रीडिंग टेक्टिंग, रीडिंग प्रॉब्लम एंड क्लोज रीडिंग। फिर जो है उसके बाद जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, उसमें है कि हमने पब्लिक स्पीकिंग को कैसे, जो स्किल है हमारी, कैसे उसको कैसे इफेक्टिव करना है, हमने पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इफेक्टिव करना है। तो उसमें था प्रिपरेशन, वोकल कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग क्वेश्चन, इन चीजों के बारे में बताया गया है। और फिर फाइनल जो पार्ट है उसमें है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन में जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हैं डिबेट्स क्या होती है, फिर एलोकेशन क्या है, एक्सटेम्पोर क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, और कंजर्वेशन है। तो इट्स ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, BSc BCS सेकंड सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी। एंड आई होप दैट you will understand the same.